Minister, with a token of our appreciation. Mr. Jain, sir, if we can have you, and Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways, Government of India. Let's keep the applause going. Mr. Gadkari has been the face of this infrastructure transformation in India that we were talking about. He's been the face of this transformation, as we call it. Thank you, sir. Minister, sir, request you to please take a seat. I'll request Aisha Faridi, the executive editor of ET Now and ET Now Swadesh, to join the Honorable Minister on stage for a discussion on infrastructure, backbone of India's economic boom. Aisha will be joining us momentarily. It's been a very interesting day here at the 11th edition of the India Economic Conclave. We've had some very interesting sessions, of course, but the highlight is going to be Mr. Gadkari's session. And we will be waiting with bated breath to hear what Sir has to say. And Aisha is now joining for the session. So over to you, Aisha. Good evening. Thank you so much. So, road transport infrastructure, the backbone of the country. How does it feel to hold charge of ministry which has so much running on its back? Actually, it is very clear that for the growth of any country, the infrastructure is very important. Water, power, transport and communication. Without developing this infrastructure, we can't get capital investment in industry and trade and business. And without investment, we cannot create jobs. And without jobs, we cannot eradicate the poverty. So the 100%, our Prime Minister has given the highest priority for development of infrastructure in the country. And today, in my experience, we don't have any resources problem, because the way in which we are monetizing the road and developing different type of models, BOT, hybrid annuity, InvIT, then TOT, there is no problem about resources, because the traffic density is very high. So just like Delhi also, there are problems for air pollution, for traffic jam. Now we are planning for making expenditure of 1,50,000 crore only in Delhi NCR area. So I got a list of the project for that. But somewhere this is the time for the country that we have to develop infrastructure. The other important thing is, anywhere in the industrial growth, GDP growth, our exports is very important. Now previously our logistic cost as compared with European country and USA and China, the China's logistic cost to the GDP comes to 8%. The American and European country is 12%. And in India, previously it was 16%. But the latest study from IIM Bangalore and IIT Kanpur and IIT Chennai, the report indicates that our logistic cost in the road is reduced by 6%. So now from 16 to 10, and the report was 3-4 months before. So today I am confident that this logistic cost is in single digit at 9%. So by reducing this cost, I feel that we are going to increase our export by 1.5%. And that is to be a great thing for the country. And 100%, it is going to create not only wealth, but it is going to create more jobs. And for agriculture development, the tourism is a sector where 49% of the expenditure, it is only
for employment. And for tourism, it is most important that we need to develop good road infrastructure. I am giving you the example of Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri. We have just built one road connecting all 4 places, and now we are also connecting the ropeway in Kedarnath. So 12,000 crore project, out of which 80 to 85% project is completed. But the people coming to Uttarakhand, now they have stopped the people to come to Uttarakhand because they have to control the thing, because the number of so increased, it was difficult for the state government to control. So by making good roads, not only we are developing trade, business and industry, but we are developing tourism, and we are also developing good agriculture also. So these are the effects which are very important for the development of our country. It is indeed, and what a multiplier effect all of this has. But I want to talk about numbers because we are at the India Economic Conclave. When we talk about the National Highway Network under Bharatmala Pariyojana, the targets have been achieved, but people are wondering what next. What is going to be your next focus area? Actually, now we are developing Green Express Highway. For example, I am giving you the example, you starting from Manali, going to Rohtang Pass. The previously time period was 3.5 hours. Now because of Atal Tunnel, it is only 8 minutes. And after coming to that Atal Tunnel, we can come to Ladakh and Leh, where we are already developing 8 tunnels and road. Already work is going on. Then Ladakh, Leh to Srinagar, the Asia's biggest tunnel, Jojila, 80% work is completed. And after Jojila, we have already inauguration of tunnel, that is Jhedmore tunnel. Now it called as the Sonbarg tunnel. Sonbarg tunnel is the name of the tunnel now. It's open. And coming to Srinagar, we are developing 36 tunnels. Out of which 24 we have already completed. And there is work is going on 8 to 9 tunnels. And by which, before coming to Jammu, there is Delhi-Katra Express Highway. That is from Amritsar and Delhi. So Delhi to Amritsar will be 4 hours. Delhi to Katra will be 6 hours. And Delhi to Srinagar will be 8 hours. And coming to Delhi by Dwarka Express Highway, going to this Delhi-Mumbai Highway, going to Surat, we are developing new road, new Green Express Highway, from Surat to Nashik, Nashik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, Solapur to Kurnool, and Kurnool to Trivandrum, Cochin, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Kanyakumari. So it is going to reduce the distance between Chennai to Delhi by 320 kilometers. So this Kashmir to Kanyakumari, this is the connectivity, and that is the reason that we are developing good roads. At the same time, we are also changing the fuel. The hydrogen, we are already doing the experiment in this hotel. 4 months before I got opportunity to launch the 3 trucks of Tata on hydrogen, green hydrogen. Yes. So, because of the alternative fuel and biofuel, we are also going to reduce the cost of the fuel. I'm just giving a small example. It's very important. One of the big company, logistic company from Mumbai, Bakshi and Company, they are working in the port. They have just started electric bus, electric truck, and they are taking their container from JNPT, Kandla and Mudra port to Sonipat. And it is by that swapping technology, the electric trucks are there from China, Proton or some company, I am not remember the name exactly. But the way in which now you see how much the effect is there. 110 rupees per liter diesel, for that they have to spend only 10 rupees on electricity. So they are taking all their container from that area to Sonipat. So it is going to reduce the cost. That is very important by good roads and fuel. Ethanol, methanol, biodiesel, LNG, electric, hydrogen. By this way we are going to reduce the cost, and which is going to boost the economy. And that is exactly the need of the hour. And we have got a tremendous opportunity in the international market. And everywhere there are good possibility for Make in India and Made in India. I am very much confident about this growth. So since you're better at math than me, how many more kilometers of roads or national highways by the end of the next calendar year?
Actually, our target is to make 60 kilometer per day. This is target. Huh? But now, once upon a time, we have go up to 40 kilometer. Now this year, I don't know, but still we need to increase our road construction. We have 7 world record. And already also in one of the project in Andhra Pradesh now, the contractor is going to make another new world record. So the 100% we want, there is, money is not the problem. I have a tremendous Then what money. is the problem? We need to make more improvement in the system. Because land acquisition, forest environment clearance, utility shifting, then getting clearance for all these departments. It takes some time for that. It is our responsibility to get it clearance for all these things. But where we need to make, resolve this issue as early as possible. You know, some people would say that there is record speed in setting the targets, but are we building fast at the cost of quality? What do you want to say to your critics? Actually, this is not the correct thing. One of the problems which I am facing, that any road constructed by any state government, I don't know, but people give me the credit for that. The Samruddhi Mahamarga is constructed by government of Maharashtra, and many times in the flight people coming to me, oh Gadkari, very well done, well done. This is not my project. The It's always well done, then yes, there's no problem. In the social media, so 70% of the problems which are already, they have given addressing to me and my department, they are not related with me. I am only responsible for national highway. I am not responsible Delhi roads. I am not responsible municipal roads, Delhi state government roads. But people are making responsible me for everything, and that is to be the problem. Sometimes they are giving me the credit of the state government, and sometimes unnecessary, without any concern, they are giving discredit to me. That is to be a problem. बुरा भी बोलते हैं आपको फ्लाइट में आके. नहीं, वो कम है. वैसे मैं एक लकी आदमी हूँ इन माई पब्लिक लाइफ कि मुझे जितने दिल से लोग अच्छा कहते हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि पब्लिक के लिए काम करना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म. And being a minister, it is my responsibility to work for the country. And when I am given, now I am working in Delhi, but now my problem is, in Gurgaon we have just made Dwarka Express Highway. Then UR2, then tunnel. The tunnel is there. Now we are connecting that tunnel to Vasant Vihar also. So everything, but still the traffic jam is there. So the capability of the Indian people to increase number of Cars. people's population and car, it is beyond my limit. I am not in position to control it. But you know, the question is, when a new road caves in, who do you blame? Do you blame the ministry, or do you blame your local contractor who's built the road? No, I am very much strict about the contractor. And now I have already world record and everything is with it. Now I decided to punish contractors and corrupt officers who are not doing quality works. I will see that. I am going to hang them. मैं उनको छोड़ूंगा नहीं. तो काम ही क्यों देना उनको? अब डर गए सब. आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पूछो, अब कोई बदमाशी नहीं करेगा. A huge round of applause for that. But sir, other thing also is toll collection. Do you feel that's kind of unfair to the ordinary commuter? Now, already because of our new toll policy and system, now we are offering the pass for 3,000 rupees, where they can get concession for 200 tolls. The cost coming per toll only 15 rupees. It is nothing. Already 40 lakhs passes already is taken by the people. And because of there is no problem as far as the toll is concerned. But now one thing is there. If you want good services, you have to pay for it. Because we are taking money from the capital market. We are paying the interest to the investor. At the same time, we have to return this money back. So, but people are happy about it. I'm just giving the example.
When I was in Mumbai, we construct Mumbai-Pune Express Highway. At that time, Mumbai to Pune, the old days, you will please remember, that Mumbai to Pune, it takes 8 to 9 hours. And today it is in 2 hours. So in 2 hours, 7 hours time saving is there, fuel saving is there, and as comparison for the cost for the toll and saving for time and fuel, it is already saving is there. So somewhere when government is already taking lot of investment from the capital market, it is to be responsibility for the government to return it back. So even we are in capital market, I'm very much lucky that our rating is III. Actually NHAI is very, very economically having a good reputation. And when we launch our InvIT model in Mumbai Stock Exchange, the time period was 7 days. But first day in 7 hours, our bond issue was subscribed 7 times more. And now we have already taken a decision that we will not take money from the rich people, but we will involve the poor people, the small people, the lower middle class people, service class people, and we are offering them 8.05% interest per year. And every month we will deposit interest on their name. And now in the first InvIT, the 100 rupees invest share cost is now coming to 140. So 100% they will get 16 to 18% return from investment in NHAI. So that is to be very, very, and 50% of now investment we will take from the small investors, the small people, and we will give them about to get 16% return, and that is to be a great thing. I feel that it is very important. I have appealed to the people that invest in NHAI bond. मतलब अच्छी रोड के लिए टोल रहेगा? बिल्कुल रहेगा. मैं आप अभी नाराज मत हुई, पर एक प्रश्न मैंने पूछा था. ये होटल में मुझे बहुत बार यही प्रश्न पूछते हैं. तो मैंने पूछा, आपने इस होटल में इतना बड़ा तामझाम किया है, तो आपको पैसे तो देने पड़े होंगे. आपके पास ऑप्शन था, आप और मैं रामलीला मैदान पर बैठ जाते, 2 चेयर रखते, कैमरा फिट करते और फुकट में काम हो जाता. पर आपने अगर अच्छी जगह किया है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. मैं अगर एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, अभी 15 दिन के बाद दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में है, अब दिल्ली चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में है, मैसूर से बेंगलोर 3 घंटे लगते थे 45 मिनट में, ये मेरठ टू दिल्ली 3.5 घंटे लगते थे 45 मिनट में. तो लोगों को जब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल रही है, प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है, थोड़ी जाम से मुक्ति मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा पेमेंट भी तो करना होगा. नहीं, आई ओनली आस्क्ड बिकॉज़ आपने बोला कैपिटल अबंडेंट है, सो आई सेड देन व्हाई द टोल. नहीं, अब उसको भी हमने बहुत कम कर दिया. अभी लोग फील नहीं करते. देखिए अभी ये जो हमारी 3,000 रुपए में पास आई है 200, तो वो एकदम. दूसरी बात अभी हमने ये किया है कि आप जहां से जाओगे वहां नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों इमेज खींचेगा, और जहां से निकलोगे तो पहले आपको 2 टोल के बीच में अगर आप 20 किलोमीटर भी जाते तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता था. अब आपको जितना कृष्ण होगा उतना ही टोल देना है. तो दैट इज ऑल्सो द सेविंग फॉर द पीपल. सर, पिज्जा कंपनी थी, जब उन्होंने इंडिया में लॉन्च करा तो अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगता था डिलीवरी में तो पिज्जा फ्री हो जाता था. अगर टोल नाके पे 5 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़े तो क्या टोल फ्री होगा? आपने अच्छा प्रश्न पूछा. मैंने आज ही राज्यसभा में उत्तर दिया है कि 26 दिसंबर समाप्त होने के पहले टोल के ऊपर 0 टाइम लगेगा. आप 60 to 80 किलोमीटर स्पीड से जाकर निकल जाओगे, ना कोई आपको रोकेगा, ना कोई टोकेगा, ना गाड़ी रोकेगा. वो कैमरा फोटो निकाल लेगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे. ओके. और दिसंबर के पहले टोटल 1000 टोल है, 300 प्राइवेट लोगों को दिए और 650 टोल जो है वो हमारे NHAI के हैं. हमने पहले 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवार्ड कर दिए हैं, और मैंने कहा कि 1 साल के अंदर खत्म करो सबको. पूरी सिस्टम ये हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं. 0 टाइम. परफेक्ट. आप तो 5 मिनट 1 सेकंड 40 सेकंड 30 सेकंड नो टाइम. आप 80 किलोमीटर के स्पीड से निकल जाओगे. Great. Look forward to that. But sir, highway construction, that seems to have slowed this year. And please correct me if I'm wrong. थोड़ा स्लो हुआ है. पर क्यों? ऐसा हुआ कि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट था उसमें
करीब 3,000 करोड़ तक निर्णय करने की अधिकार हमारे डिपार्टमेंट में थे। और अभी क्या हुआ कि भारतमाला कैंसिल हो गया और 2011 में हमको 1,000 करोड़ रुपए का अधिकार था। तो नेचुरली हमारे 90% प्रोजेक्ट जो होते हैं हमको हमारे डिपार्टमेंट में 2 कमिटियां हैं, फिर फाइनेंस की कमेटी है, उनकी 2 कमेटी है, फिर कैबिनेट में जाता है। तो प्रोसीजर अब बड़ा होने के कारण थोड़ा सब क्लियरेंस करते समय थोड़ा देरी होती है। अब ये 18% जीएसटी भी है उसमें, तो 1,000 करोड़ में तो वो भी लग जाता। तो हमारा हर प्रोजेक्ट 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ के हैं। तो नेचुरली इसके कारण थोड़ा ये होता है। तो फंडिंग एंड क्लियरेंसेस बेसिकली नहीं, सिस्टम में जो प्रोसीजर है तो वो सब जगह जाता है। फिर तो जहां जाता है तो वहां ज्ञान भी मिलता है नई नई बात पूछी जाती है, बताई जाती है। जैसे सबके कि clear। लास्ट क्या नई नई बात पूछी गई? नहीं, बहुत कुछ सरकारी लोग बात पूछने में माहिर होते हैं। हाँ। इसकी जरूरत है क्या? अच्छा। ये फ्लाईओवर नहीं बनाया तो चलेगा क्या? उससे लेकर अनेक प्रश्न आते हैं। फाइनेंस वाले वगैरह उनका काम ही होता है, तो पूछते रहते हैं। अभी मैं इस होटल के नीचे एक टनल बना रहा हूँ। नीचे होटल के बाजू अच्छा, से हाँ। ये जो ताल कटोरा स्टेडियम से गुड़गांव तक, अरे अभी निर्णय नहीं हुआ है, अध्ययन शुरू हुआ, उसका डीपीआर बना फिर तय करेंगे। 6 लेन एक तरफ, 6 लेन एक तरफ, और वो पूरा गुड़गांव के बाहर निकलेगा। तो ये जो रोड है, अभी मैं ही तंग आया हूँ। मैं दिल्ली को इतना ही जानता हूँ कि ये होटल के समोर से पहले मेरे को एक ही दिल्ली की जगह बहुत मुकद्दत हो गई थी, दौला कुआ। रोज सुबह शाम जब आता था मैं फ्लाइट से तो यही रुकता था। तो पहले मैंने किया तो मुझे डिपार्टमेंट ने कहा कि ये एनएच नहीं है। तो मैंने बोला हम काम नहीं कर सकते। बोला अच्छा ठीक है, तो एनएच कहाँ है? वो ब्रिज है ना वहाँ दौला कुआ के आगे जाके, वहाँ ब्रिज उतर गया, खत्म होता है। तो बोला ये सिंपल काम है, इसको ताज पैलेस तक करा दो। मैंने बढ़ा दिया लेंस, यहाँ तक लेके आया। अब उसके कारण धौला कुआं निकल गया। अब धौला कुआं का प्रॉब्लम इन लोगों को पूछो कितना था, अब सॉल्व हो गया। अब वो कोने पे पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं कि हमको हमारी भी बिल्डिंग जा रही, वो भी बना दो, नई भी बिल्डिंग बना दो, क्वार्टर भी बना दो। अरे मतलब कोई गुनाह कर रहे हो क्या हम लोग? तो अभी चल रहे बात, जो मिल जाएगी तो कॉर्नर जो है उधर का वो भी उड़ा देंगे। हम तैयार है उनका काम भी 1 करोड़ करने के लिए, तो वो भी वहां से थोड़ा ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। मुंबई में भी आप ऐसे कुछ कर सकते हैं है ना? मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स मेरे समय बने हैं, वर्ली बांद्रा थोड़ा बने। और अभी मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे JNPT तक जा रहा है, और अभी वो नया हाईवे बनने के बाद ये जो वेस्टर्नली बाईपास है, जो साइंस से आता है ना पूरा माइम से, तो इसमें सीलिंग भी आगे बढ़ रहा है विरार तक, और हमारा भी मुंबई दिल्ली हाईवे जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें होगा, पर देखो गलतियां होती है। मैंने नागपुर में अभी नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो, पहली बार एक ही पिलर पर। फिर ये बात देवेंद्र जी को भी मैंने बताई थी, पर ये प्रूवन बात नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये वेस्टर्नली बाईपास पर जो मेट्रो हो रही है, ये अगर हम करते तो शायद हमको और डबल लेन हो जाती थी। पर अब मैं पूना में 50,000 करोड़ के 4 फ्लाईओवर बना रहा हूँ, 50,000 करोड़ के। उसके 3 पूरे टेंडर भी आ गए, और उसमें नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर एक पिलर पर, और उसके ऊपर में मेट्रो। तो पूना से अहमदनगर जाने वाला रोड, पूना से सोलापुर जाने वाला रोड, पूना से सातारा जाने वाला रोड, फिर चाकण शिक्रापुर तड़ेगांव वाला रोड, तो सब जगह पर अभी हम लोग ये 3-3, 4-4 लेन के बना रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि उसके सिवा कोई पर्याय नहीं। अब ये टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई तो अब करेंगे। Moving on to e-challan, sir. It seems only 30% of e-challans are recovered. Is enforcement failing, you think? देखिए, आप एग्जैक्टली क्या मुझे पूछना चाहती हूँ, मैं थोड़ा समझ नहीं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि e-challans की जो रिकवरी है वो अभी सिर्फ 30% पे बताई जा रही है. That is what facts and figures are saying. क्या रिकवरी फेल हो रही है किसी तरह से, और हो रही है तो क्यों हो रही है? पहले बात तो आपकी बात सही है, पर अभी हमने एक नया नियम बनाया। क्या? जो इसलिए बनाया कि टोल पर कोई आदमी टोल लेते हुए भाग जाएगा और पैसे नहीं भरेगा तो क्या करना। तो हमारा वाहन पोर्टल है, वो गाड़ी बेचेगा। जैसे मैंने मजाक में बताया अधिकारियों को, मैं महाराष्ट्र में एमएलए था, मंत्री था,
तो कोई भी बोलता था एमएलए हॉस्टल में रूम चाहिए, मैं चिट्ठी देता था। महाराष्ट्र से उतरना चिट्ठी देता था। और जब मैं फॉर्म भरने के लिए गया एमपी का, तो मुझे बोलो एनओसी लाओ। एनओसी लाया तो 7.5 लाख रुपए मेरे ऊपर लाइबिलिटी निकली। तो मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, बोली ये चिट्ठियां दी तुमने, इसका किराया है। तो अभी हमने सिस्टम ये की कि वाहन में तभी रजिस्ट्रेशन होगा, गाड़ी तभी बेच पाओगे जब पुराने सब ड्यूज क्लियर करेंगे। तो उसको आप कानून में ला रहे हैं। तो आपकी गाड़ी बेचने के पहले आपको जितना कुछ आपकी लायबिलिटी है वो भरनी पड़ेगी, तब वो आप ये कर पाएंगे। आपने एक बात बोली and something which is very close to your heart and you're very passionate about, the fuel policy. I want to talk about the E20 fuel policy. Are owners of older vehicles paying the price, you think? ये गलत बात है। ऐसी पूरे देश में एक ही तकरार गुजरात से आई थी। और ये जब इथेनॉल जो है ये 49 से ब्राजील में चल रहा है, अभी 27% है, तब उसमें इतना ही आया था कि ये जो मेटल पार्ट्स है ये बदलने चाहिए और इसमें कोई मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ARAI ने टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने के बाद 2 साल के बाद सर्विसिंग होती है। वो वॉशर्स वगैरह होते हैं उतने बदलने पड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो वैसे भी होते हैं। और इसलिए ये झूठ बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पेड कैंपेन था और नहीं, मुझे भी मालूम है। और वो कैंपेन में ऐसा था कि देखो 22 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जा रहे हैं। ये प्रदूषण दिल्ली में फॉसिल फ्यूल का 40% उसके कारण है। और ये हमारे देश में केवल हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को 45,000 करोड़ रुपए उनके जेब में गए। जो मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, जो मार्केट प्राइस, और MSP 1800 रुपए क्विंटल थी, वो किसानों को 2600 से 2800 रुपए क्विंटल मिले। तो क्या इस देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? और इस देश के इंपोर्ट को कम करके रूरल एग्रीकल्चर हमारे किसानों को अगर वो अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक है। अब इलेक्ट्रिक, इसी होटल, ये होटल बहुत बातों का साक्षीदार है। हर आंसर में ये होटल का हाँ, क्योंकि यही मुझे पूछा गया था और वो नाम नहीं लेता मैं। उनने पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? जब मैंने इलेक्ट्रिक लॉन्च की थी तो कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, 3% ग्रोथ है। और जो लिथियम आयन बैटरी $150 पर kWh थी, वो आज $55 to $60 पर kWh आई। और मुझे खुशी हुई कि हमारे एक IIT के दिल्ली के लड़के ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी को 5 साल एक्सपेरिमेंट किया। अब पेट्रोल डीजल के बजाय एल्यूमिनियम प्लेट फ्यूल बनेगी और वो भी सक्सेसफुल हुआ। उसको फोर्ड कंपनी ने उसको एक अवार्ड भी दिया है पोल्यूशन के लिए। तो आने वाले समय में अल्टरनेटिव केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है, और उसके साथ एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा और ये जितना 22 लाख करोड़ आज है ये रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल गरीबों के घर जाएंगे और गांव स्मार्ट विलेज बनेंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि मैं जब मंत्री बना था पेट्रोल इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था और हमारा नंबर 7वां था। आज हमारा नंबर 3रा है और 3रा नंबर नहीं है, हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर गए और साइज ऑफ इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ हुआ। अब अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका 79 लाख करोड़, चाइना दूसरे नंबर पर है 49 लाख करोड़ और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़। अब ये इंडस्ट्री है कि जिसने 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। ये इंडस्ट्री है कि जो GST के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। और मेरा ये मिशन है, उद्दिष्ट है कि आने वाले 8-10 साल में हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे वर्ल्ड में। और अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, सब गाड़ियां, अभी मर्सिडीज के चेयरमैन मुझे मिले थे, वो हम इंडिया से बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। हुंडई यहां से भेज रहे, मारुति सुजुकी यहां से भेज रहे, टोयोटो यहां से भेज रहे। तो आने वाले समय में हम वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, LNG, CNG और ये अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की हमारी स्कूटर, अभी आपको पता है होगा शायद कि हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री, बजाज, TVS, हीरो, होंडा, सब 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन इज एक्सपोर्ट। और जब इलेक्ट्रिक पर आएगा तो ये श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में हमारा इतना एक्सपोर्ट 2 व्हीलर 3 व्हीलर का होगा। तो इलेक्ट्रिक के कारण बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा।
तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी ग्रोथ बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, जीडीपी ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जॉब्स। और इसलिए मैं अक्सर एक मानता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बेरोजगारी को दूर करना होगा, तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर में काफी रिफॉर्म करके बदलना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, तभी रोजगार निर्माण होंगे, और रोजगार निर्माण होंगे तब गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ये जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा होगा। But sir, for companies like a Tesla or a BYD coming to India, is the ultimate goal eventually that they make in India also? Purely because आपने domestic companies की बात करी जो export करें। चिंता ही मत करो, हम क्वालिटी में इतने बेस्ट हैं और प्राइस में इतने सस्ते हैं कि किसी की इच्छा रहे या न रहे उसको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर से लाएगा। देखो हमारे इंजीनियर्स डूइंग एक्सेलेंट जॉब्स, हमारी क्वालिटी में कोई क्या मॉडल्स आए। मैं कभी कभी नाराज होता था, गोयनका जी बैठे हैं, इतने सुंदर मॉडल्स आए टाटा के, महिंद्रा के, लोग पसंद करने लगे। अब कंपटीशन है, रोज नए डिजाइन आ रहे हैं, रोज नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, और इसके कारण मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट। हम लोग बिल्कुल आगे जाएंगे, और रोड हम अच्छे बना रहे हैं, परचेसिंग पावर बढ़ रही, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब प्रॉब्लम में पुरानी गाड़ियां रखना का। अभी मैं स्पेन में गया था, तो स्पेन में मैंने सब शहरों में देखा कि ये हाईवे के नीचे में 10-10, 12-12 हजार गाड़ियों की पार्किंग है। तो मैंने वहां से डेलीगेशन बुलाया था, और अभी वो स्पेन के इन्वेस्टर भी आए थे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में ये रोड के नीचे कोई पार्किंग हो सकते क्या, ऐसे इसको भी हम अध्ययन कर रहे हैं। आई विश मुंबई रोड्स पे इतनी जगह होती। But sir, coming back to my question, it's not a compulsion for new auto companies to come into India or global companies to come into India that they have to make in India also. Would that ever be the case? कंपल्शन नहीं कर सकते, पर लोग आ ही रहे ना, सबको आना ही पड़ेगा। वो तो आ ही रहे हैं। मुझे बताओ, इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट कहां मिलेगा? और हिंदुस्तान में उनको आना ही है, और हम उनको वेलकम करेंगे। पर ये बात नहीं चलेगी कि चाइना में माल बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे। आप यहाँ हो, यहाँ तुम इन्वेस्टमेंट करो, हमारे लोगों को रोजगार दो, और यहाँ डेवलप करो, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सबको सहयोग करेंगे। सर, एक बात एथेनॉल पे, क्रिटिक्स से एथेनॉल स्ट्रेन्स वाटर एंड फूड सप्लाई, हाउ वुड यू काउंटर दैट? देखिए, पहली बात तो आपको शायद याद होगा कि नहीं, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। मैं आ रही हूँ उन क्वेश्चंस और दूसरी बात, मैं आऊंगी। मुझे 14 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट मिली है, उसमें से 7 डॉक्टरेट मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, और मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। मैं एक्चुअली रोड में काम ही नहीं करता, मैं मेजोरिटी एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैंने 47 प्रोजेक्ट्स तैयार करके रखे हैं जो टेकिंग वाटर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और आपको एक सिंपल उदाहरण, मैंने उस समय ये आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके डैम को मंजूरी दी 60,000 करोड़ का। अब पोलावरम डैम का क्या है कि वहां का पानी डायरेक्ट निकलकर समुद्र में जा रहा है, 1300 टीएमसी, और हम पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। और वो पानी की हमने 2 योजना बनाई थी कि ये गोदावरी का जो एक्सेस वाटर है जो समुद्र में जा रहा है, ये एक्सेट गोदावरी का पेनार का कृष्णा में, और कृष्णा का कावेरी में, टेल एंड टू तमिलनाडु, 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। मैं आपको बताता हूं, तमिलनाडु और कर्नाटक को झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। अभी हमारे आज मंत्री है केंद्र में, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनको और तमिलनाडु के दोनों को मैंने बिठाया, दोनों को मैंने समझाया कि तुमको जितना पानी चाहिए उतना अवेलेबल है, तुम झगड़ा क्यों करते हो? ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली झगड़ा कर रहे पानी के लिए। मैं जब हमें स्वाधीनता मिली तो 6 नदियां जो थी भारत की, 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। वो 3 नदियों का पानी हमारे अधिकार का है, और वो पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो मैंने निर्णय किया वो पानी खत्म बंद करो, हम लेंगे।
केवल एक इंदिरा जो कैनाल है उसको हमने कंक्रीटिंग किया। ये बादल साहब का गांव है, उधर पूरा पानी बांध जो तक फूट गए थे सब। केवल वो कंक्रीट का बनाने से 60 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। अब बिहार में कितना बाढ़ आ रहा है, कितना ब्रह्मपुत्रा में कितना, हर साल बाढ़ के कारण हमारा कितना नुकसान होता है। मेरे अंदाज से 3.5 लाख करोड़ का हो रहा है। और अभी तो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन आया है, और अभी तो एआई लगा है हमारे यहाँ। अमेरिकन सैटेलाइट फोटो निकालता है मेरे खेती पे, माइक्रोसॉफ्ट गूगल मदद करती है, वो पिटते हैं तो 50% पानी कम हो गया। अब आने वाले समय में उत्पादन 50% बढ़ा, और खर्चा इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी खर्चा कम हुआ, और पानी में तो अब इतने बड़े प्रमाण पर पानी अवेलेबल है। हम ड्रिप में जा रहे हैं। तो ये जो देखो, मैं आपको एक, आप नाराज मत हुई है, ये जो दिल्ली में बैठे हुए जो अर्बन सेंट्रिक लोग हैं, ये ऐसी बातें छोड़ देते हैं। और ये गांव गरीब मजदूर किसान बेचारा, उसका आवाज कहाँ आता है? हमारा लोग कोई तो आ नहीं पाता आपके यहाँ, और ये बोलते हैं पानी। अरे ये पहले मुझे बताओ कि बाढ़ के कारण पूरा बिहार, उड़ीसा, बंगाल पानी में डूब जाता है, उसको आप बाढ़ कम करने के लिए वो पानी को डाइवर्ट किया तो बिगड़ा क्या? वो पानी है। और दूसरी बात सिंपल, जिसके लिए मुझे 7 डिलीट मिली, इसलिए विश्वास रखो, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने 1000 तालाब बनाए हमारे पंजाब और महाराष्ट्र में बनाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 37 तालाब बनाए। 300 एकड़ इरिगेशन था, अब 3500 एकड़ हुआ। कितने अजिंठा टू बुल्डाना नदी नालों का खोलीकरण किया, नए नए फुकट में तालाब बना दिए। खुद एनएचए के तरफ से हम इतने राज्यों में फुकट में बना रहे, क्योंकि रोड बनाने के लिए एग्रीगेट लगता है। तो मैं कहता हूं, तुम किसान हो, परमिशन दो, मैं तुम्हारी मिट्टी खोदता हूं, रोड में डालता हूं, और तुमको तालाब बना देता हूं फुकट में। ऐसे हजारों तालाब बनाए। और ये पानी का कंजर्वेशन होगा, पानी का स्टोरेज होगा। जैसे आप कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति ने हर महीने पैसे डिपॉजिट करता है बैंक में, और रिटायर होने का उसको अमाउंट मिलती है। तो हमने पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। अगर यही हमने किया तो मुझे लगता है कि पानी की कोई कमी नहीं है, और बिल्कुल इस बात में कोई तथ्य नहीं है। और मैं ऐसे आपको पानी के ऊपर 2 घंटे बताऊंगा कि कितना एक्सेस वाटर है। मैं पूछ रही हूँ आपसे पानी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा एक बात, वाटरवेज। हाँ सॉरी, एक छोटी बात। हाँ, मैंने अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचा 9 साल से। कैन यू बिलीव? 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को बेचा, और वो रिसाइकलिंग करके पावर प्रोजेक्ट को दिया। अभी मैंने मथुरा में 80 MLD स्लज गंदा पानी हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट तैयार किया। 100 रुपए का प्रोजेक्ट 40 रुपए केवल मैंने दिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसने लिया। और वो जो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यूज करती थी, 25 करोड़ साल की, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है, वैद्य साहब थे चरण, वो बोला आप 5 करोड़ बचा देता हूं, आप 20 करोड़ लो। और वो गंदा पानी शुद्ध करके उनको रिफाइनरी को मिल रहा है। अब देश में कितना पानी अवेलेबल है जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है। तो मुझे लगता है पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। पानी से वाटरवेज प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन दैट? आपका प्रश्न सही है, पर मैं मंत्री नहीं हूं उसका। आपको लॉन्च हुआ था। आपको जानकारी करके, अभी सोनवाल जी मंत्री है। देखिए, रोड पर जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए खर्चा है। अगर आप रोड से जाओगे तो, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपए खर्चा है, और पानी से जाओगे तो 1 रुपया खर्चा है। मैंने एक प्रयोग किया था कि कुछ गाड़ियां ऑटोमोबाइल की कंपनियां चेन्नई में है और कुछ दिल्ली में है। तो मारुति की गाड़ियां यहां से रेलवे से कांडला पोर्ट पे ले जाना, और वहां से एक स्पेशल शिप लाया था। उधर से वहां के गाड़ी ट्रैक्टर इधर उतरेंगे और गाड़ियां जाएंगी, और वो चेन्नई जाएगी। मुझे बताओ, बहुत कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वाटरवेज को डेवलप करना है। जब मैं मंत्री था तो 120 नदियों को हमने वाटरवेज में कन्वर्ट किया। अब उसको जलमार्ग बनाने के लिए ड्राफ्ट मेंटेन करना पड़ेगा। वाराणसी टू हल्दिया करीब 1385 किलोमीटर हमने वाटरवेज बनाया। फिर हल्दिया के बाद हम बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट ब्रह्मपुत्रा जाते हैं, और ब्रह्मपुत्रा से जब उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, तो सुषमा जी ने मुझे उनके पास भेजा था। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये पूरा गंगा का ये जो वाटरवेज बना रहे ब्रह्मपुत्रा का,
तो आप मुंगली करके पोर्ट है जो हमारे बॉर्डर से 250 किलोमीटर बांग्लादेश में, तो ये भी काम तुम हमें करके दो, हमारी फ्रेंडली रिलेशन है। तो मैंने कहा सुषमा जी को बताइए। तो सुषमा जी ने मुझे पूछा कि आप कर सकते हो? बोला आप बोल सकते तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले आप कर दो। तो मैंने बांग्लादेश में घुसकर 250 करोड़ रुपए वाटरवेज बना दिया और आज वो ब्रह्मपुत्रा से मुंगली तक जा सकता है। और अभी हमने वहां एक जोगी धोपा करके असम में है, वहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, जहाँ रोड भी है, रेलवे भी है, वाटरवेज भी है और एयरपोर्ट भी है। कार्स की बात करें, रोड्स की बात करें, पोल्यूशन की बात कैसे नहीं करें? व्हाट इज द सोल्यूशन सर टू क्या दिस काइंड ऑफ solution है? हैजार्डस एयर दैट वी आर ब्रीथिंग? मैं आपको बताऊं, मेरे को इन्फेक्शन हुआ फिर और मैं रहता नहीं दिल्ली। मैं अभी आपको बहुत सच बता रहा हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरकर जब दरवाजा खुलता है और मोबाइल फोन चालू होता है तो मैं पहले निकालता हूं कि मैं वापस कब जाने वाला हूं। रियली इट्स अ बिग प्रॉब्लम और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। 40% एयर पोल्यूशन जो है वो फॉसिल फ्यूल के कारण है, वो दूर हो सकता है। दूसरा, अभी हमने प्री कास्ट टेक्नोलॉजी मैंडेटरी की रोड में, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं। तीसरी बात, रोड के बाजू में जो मिट्टी है, जिसके जिसके रोड है वो अच्छे इक्विपमेंट लगाकर पूरा कचरा उठा ले, मिट्टी उठा ले और उसको घास लगा दे या कंक्रीट करा दे, तो उसके कारण होगा। तीसरी बात, परली की अच्छी बात हुई, मैं आज आपको न्यूज दे रहा हूं कि आज ही मैंने परली से डांबर बनाया हमने, और नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वो जो पेटेंट लिया उसका, परली से डांबर बनाया, तो उसको 15 लोगों ने खरीदने के लिए ऑफर किया है और अभी अगले सप्ताह ये कार्यक्रम हो रहा है। अब परली जलेगी नहीं, वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। तो परली से डांबर बन रहा है, परली से हवाई ईंधन बन रहा है, अब परली से इथेनॉल बन रहा है। और ये दिल्ली की जो टेकड़ियां है, तो मैंने ये तय किया है कि 27 कंप्लीट होने के पहले लीगेसी वेस्ट जो पड़ी है पूरे देश में, इसको हम देश को इससे मुक्त करेंगे। मैंने ये गाजीपुर के टेकड़ी की कचरे की जो हाइट थी वो 7 मीटर कम कर दी और अभी तक 80 लाख टन कचरा हमने UR2, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे, अहमदाबाद डोलर, अनेक जगह पर हम कचरा डाल रहे हैं और कचरा रोड के अंदर जाएगा सेग्रीगेट करके। तो मुझे लगता है कचरे का पर अब, तो अभी स्पीकर साहब ने भी मुझे कहा कि ये पोल्यूशन पर अब शायद चर्चा होने की संभावना है। तो मैंने कहा हर कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बोलो कि वो इसके लिए क्या करने वाले, आप सबको बुलाओ। और ये महत्वपूर्ण है, मैं इसके महत्व को समझता हूँ। अब मैं आपको, एक ने मुझे हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बताया कि दिल्ली में इस प्रकार की स्थिति में अपने जीवन को 10 साल से आयु को कम करना, इतना ये डेंजरस है, इसको किसी भी हालत में रिजॉल्व करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे एक बार बुलाया था कि भाई क्या हो सकता है, तो मैंने किताब लिखी है, उनको दी है, मैं आपको दे दूंगा। पर मैं भी बहुत संवेदनशील हूँ, पर यह बहुत कठिन और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है, पर इसके तरफ हमको जाना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए, बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं जरूर मेरे तरफ से कोशिश करूंगा। पर गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा हाइब्रिड कार्स को पुश होगा। मैं हाइब्रिड कार में आया हूँ, कौन सी? फ्लेक्स इंजन के, अभी आया हूँ। उसका पोल्यूशन 0 है, उसका 100% इथेनॉल और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और उसका पेट्रोल के एवरेज में अगर तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर है। मैं 1.5 साल से 2 साल से यूज कर रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं। नागपुर में भी ये फ्लेक्स इंजन की कार, अब टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, सबका इंजन तैयार है। अब केवल वो हमारे जो कुछ नॉर्म्स है वो डिक्लेयर हो जाएंगे तो आएगी। अभी आपको बताता हूं, मैंने 6 महीने पहले बजाज की मोटरसाइकिल लॉन्च की, तो राजू बजाज जी ने मुझे बताया कि जो मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलती है उसका पर किलोमीटर खर्चा 2 रुपए 40 पैसे है और जो CNG पर चलती है उसका खर्चा 1 रुपया है। तो ये आप बताइए कि CNG, इथेनॉल, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये पैसे बचाने वाली बात है, पोल्यूशन को समाप्त करने वाली बात है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाली बात है। और देश के इकोनॉमी में इतना इंपोर्ट होता है, ये भी हम कम करेंगे। तो ये फ्लेक्स हो। दूसरी बात और एक बताता हूँ, लोग मुझे पूछते, तुम बोलते हाइड्रोजन पे जाओ, इथेनॉल पे जाओ, इलेक्ट्रिक पे जाओ, ये सब होगा तो क्या होगा? अब मुझे इसका सही उत्तर नहीं मैंने देना चाहिए, पर आप देता हूं।
इतनी पटक पटक के हमने मेहनत करने के बाद भी 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये इतना बड़ा इशू है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे, सब बैटरियां डेवलप करेंगे, इथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी, मेथेनॉल, हाइड्रोजन, अभी सब करेंगे, तो भी ये इंपोर्ट कम करना इट्स अ बिग चैलेंज। और इसलिए मुझे लगता है कि जिसको जिसमें कंफर्टेबल है जाओ, आप सिलेक्ट करो। अभी आसाम पेट्रोलियम 800 टन पर डे मिथेनॉल बनाता है। अब अशोक लेलैंड ने बसेस, मैंने बंगलोर में लॉन्च की थी, कि वो जो बसेस थी वो 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर चली। अब मिथेनॉल 100% मिथेनॉल की बस चल सकती है। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिथेनॉल के ट्रक और बसेस तुम चलाओ, पर ये दिल्ली में चलाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ मिथेनॉल नहीं। तो यहाँ परली से इथेनॉल बनेगा। कहीं अभी 400 प्रोजेक्ट है जो परली से सीएनजी बना रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा, हमारा इंडियन ऑयल का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पानीपत में शुरू हुआ है, जो परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएगा, हमारे देश का हवाई ईंधन भी बनेगा, और 150 टन बायो बिटुमिन। इंपोर्ट करना पड़ता है बिटुमिन, हवाई ईंधन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारी इकोनॉमी इससे डेवलप होगी। इसको सबको करने दो, जिसको जो चॉइस है वो करने दो। स्काई इज द लिमिट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर, आपने इंपोर्ट की बात करी तो दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन इट सीम्स फॉर द टैरिफ ट्रबल्स आल्सो विद द यूएस। बाय व्हेन कैन वी हैव अ रेजोल्यूशन? देखिए, किसी भी सशक्त इकोनॉमी के लिए स्वदेशी स्वावलंबन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि देश के लिए, एक मुझे याद है मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो मैं कहता था कि ये इंजीनियर जो है ये यहां पढ़ता है, इतना पैसा डॉक्टर पे खर्चा, और जा रहा अमेरिका में, ये जा रहा यूके में। हमारे देश में हम पैसा खर्चा करते, गरीब क्यों जा रहा? अब मेरी सोच बदल गई। मैं बोलता और जाओ, डॉलर में कमाई करो और पैसा इधर भेजो क्योंकि अब देश में देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना, देश के लिए वहां से वो डॉलर लगाना कर यहां लाना, यही तो बड़ी देशभक्ति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सशक्त इकोनॉमी बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेड बिजनेस में ग्रोथ बढ़ाने के लिए अब तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। और इसलिए एक मंत्र मैं अक्सर याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। इसको हमने आत्मसात करना चाहिए। और दूसरी बात, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate leadership or appropriate technology that you can convert waste into wealth. तो मुझे लगता है ये दोनों फिलॉसफी का उपयोग करके ये क्लैरिटी चाहिए हमको। हमने इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साहब, सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स देखते हैं सबसे पहले? नहीं, मैं नहीं देखता। मैं अपना समय खराब नहीं करता। मुझे आपने इतना काम करने का मौका दिया, मैं अपने काम में रहता हूं, फालतू बातें में ध्यान नहीं देता। Okay. One more thing. 5 years from now, what can the Indian traveler on the national highways that you've built expect on the Indian roads? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव कर रहा हूं। और पहला अभी हमने प्रोजेक्ट लिया है, पायलट प्रोजेक्ट। टाटा का जॉइंट वेंचर करा दिया मैंने फॉरेन कंपनी से, वो बस बना रहे हैं। कौन सी? हाँ, कौन सी? जो है ये फ्लैश चार्जिंग बस, इसकी टेक्नोलॉजी है सीमेंस और हिटाची की। और बस 135 सीटर है, एयर कंडीशन है, उसमें एग्जीक्यूटिव चेयर्स है, और बस में एयर होस्टेज, बस होस्टेज है, और बस में सामने टीवी लगा हुआ है, और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम है। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे पर दिल्ली से जयपुर, देखिए इसका मेन उद्देश्य है कि कोई अपनी गाड़ी ना निकाले, वो लैपटॉप पर बैठकर एग्जीक्यूटिव चेयर सोते हुए दिल्ली से जयपुर जाए, तो गाड़ी निकालेगा नहीं। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर कंफर्टेबल, अच्छा बनाना, इसको बनूंगा। दूसरा, आज ही मुझे खुशी हुई कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पानी में उतरने वाला हवाई जहाज, एमपीवीएस सी प्लेन। तो आज ही जो ओनर थे वो मुझे बता के गए कि मेरे मित्र है वो, कि 1 जनवरी से हम वो चालू कर रहे हैं। तो अब कल जाके ड्रोन भी तैयार होंगे, ऐसे लोग एयरपोर्ट से उड़ेंगे, इस होटल के
ऊपर उतर जाएंगे, नीचे आएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है। देखो, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट में रिवोल्यूशन करना। अभी मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस वो कोशिश कर रहा हूं। मैं 260 रोप वे केबल कार फेनिकुलर रेलवे बना। और आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं कि केदारनाथ का रोप वे जो बना रहे हैं उसका खर्चा है 5,000 करोड़। खर्चा कर रहा है इन्वेस्टर। हमने उसको अवार्ड दिया और वो प्रोजेक्ट दिया, इसलिए उनको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहा है, फुकट में। खर्चा हमारा 1 रुपए नहीं। तो अब मैं 260 रोप वे केबल कार फेनिकुलर, अभी ये धोला कुआ टू मानेसर हवा में चलने वाली, उसका भी चल रहा है। तो उसका टोल नहीं होगा ना केदारनाथ? टिकट होगा ना? होगा टिकट। हाँ। सब तो आपने बोला फुकट में हुआ। नहीं, देखो, फुकट की आदत खराब है। मैं एग्रीकल्चर के सेमिनार लेता हूं तो 250 रुपए फी रखता हूं, 600 खिसाना है। मैंने कहा ये फुकट वाले लोग नहीं चाहिए। हम भाषण देते हैं ना पब्लिक मीटिंग में, कोई खाता है, कोई चला जाता है, तो वो चलता है उधर। बोला नहीं, जिसको आना है, हाँ लगे तो आप 50 रुपए दो फी। सीरियस होते लोग, ये फुकट में नहीं देना चाहिए, रीजनेबल का। अभी 30% डीजल बस की तुलना में टिकट रेट कम करके इतने कंफर्ट देना, क्या बड़ी बात नहीं है? तो मुझे लगता है लोग भी तैयार है उसके लिए। What would be the fuel of the future, if I were to ask you that question? हाइड्रोजन। Hydrogen. मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। गाड़ी टोयोटा की है और वो जापानी वर्ड है मिराई, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। और हाइड्रोजन 4 प्रकार के हैं। एक हाइड्रोजन है कोयले से बनता, वो ब्लैक हाइड्रोजन। जो पेट्रोलियम का बायो प्रोडक्ट है वो ब्राउन हाइड्रोजन। और जो पानी और एग्रो वेस्ट, ये म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोमास से बनेगा और पानी से बनेगा, वो ग्रीन हाइड्रोजन। प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रोलाइजर से जब हाइड्रोजन बनाएंगे तो 50 यूनिट बिजली लगती है। अगर वो सोलर पे भी होगी तो 150 रुपए की तो बिजली लगेगी। मेरा टारगेट है, मिशन है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं कि $1 पर केजी हाइड्रोजन बने। तो मैं By when? $1 By when? कोशिश कर रहा हूं। ये सपना है। अब मैंने जितने सपने दिखाए उतने पूरे किए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा। पर ये म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक को रिसाइकल करके, ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकालकर मीथेन से हाइड्रोजन मिल सकता है। तो ये अभी बहुत इसके ऊपर काम हो रहा है। और हाइड्रोजन फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, रेलवे में, हवाई जहाज में, स्टील सेक्टर में और ट्रक ट्रांसपोर्ट में, सब में हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन की बसेस आई है, हाइड्रोजन की ट्रक हमने लॉन्च की है। अब 10 रूट हिंदुस्तान के, जिसके ऊपर टाटा, वॉल्वो, अशोक लेलैंड, इंडियन ऑयल, बाद में HPCL और सबको लेकर हमने पायलट प्रोजेक्ट पहला शुरू किया 10 रोड पर देश के, कि जिसमें ये बस है, वो जो आई है ना अभी, ये इलेक्ट्रिक बस जो है ये, हाँ, तो ये बहुत सुंदर है, 135 सीटर है। तो हम हाइड्रोजन के ट्रक भी अभी आ जाएंगे, हाइड्रोजन के बसेस भी आएगी। और हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और इलेक्ट्रिक में भी तो हमारे पास बहुत कुछ है। Just out of curiosity, how many cars do you have? How many? Cars do you have? मेरे पास कोई कार नहीं। अभी तो आपने बोला हाइड्रोजन की टोयोटा कार। नहीं, कार जो है ये पायलट प्रोजेक्ट में क्या है कि मैं फॉसिल फ्यूल के खिलाफ कैंपेन करता हूँ। अब एक दिन मैं जब मेरे यहाँ बोल रहा था कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, गाड़ी चलेगी, तो हमारे घर में मेरी पत्नी कभी राजनीति में बोलती नहीं, तो उसने मुझे पूछा कि तुम बोल रहे हो पानी से हाइड्रोजन बनेगा और कार चलेगी, जब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का क्या विश्वास आपके ऊपर बैठता? तो मुझे तब बड़ा आश्चर्य लगा कि अपने में और लोगों में अंतर है। तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर, बेचारे उनका देहांत हो गया, उसको फोन किया और मैंने कहा विक्रम मुझे हाइड्रोजन गाड़ी चाहिए। बोले इट्स वेरी डिफिकल्ट। बोला आई डोंट नो डिफिकल्ट, हमें चाहिए। तो वो बोले मैं देखता हूँ। फिर उसकी गाड़ी लाई, फिर उसमें हाइड्रोजन भरना। तो गाजियाबाद में नहीं, फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबोरेटरी है, वहां राम कुमार करके थे, वहां एक हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन तैयार किया। तो अमेरिका से उसका स्टेशन है, वही 1 साल नहीं आया, वो मुश्किल से आया। अब वो 300 बार की 700 बार। अब मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम यह है
कि वो गाड़ी में मैं घुमाता हूं तो गाड़ी में हाइड्रोजन भरने के लिए जगह नहीं, तो मैं यहां से फिर गाड़ी वहां ले जाता हूं और हाइड्रोजन भर के ट्रक में लेकर मेरे आता हूं। अब मैं इसको आज पार्लियामेंट में सुबह गया था, तो मैं इसके लिए कि मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल का उपयोग मत करो। अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल में जो पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनियस है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई चिंता मत करो, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनस है, वही उसका उपयोग करो। तो ये कैंपेन करने के लिए मैं यूज करता हूँ। Lastly, we're in Delhi, and what better food than what you get in Delhi? I know your favorite is vada pav, and nothing can beat Maharashtrian food. आपको पता है कि दिल्ली में अगर अच्छा वड़ा पाव करना है तो दिल्ली का पाव काम का नहीं, पाव मुंबई से लाना पड़ता है। Exactly. तो दिल्ली में आप क्या खा रहे हैं? देखो, दिल्ली में केवल आलू पराठा और पनीर के बिना कुछ मिलता नहीं। खाने की जन्नत कोई है तो आमची मुंबई। Absolutely. Okay, on that note, thank you so much for your time today. Thank sir. you. Pleasure speaking with you. और मुंबई का भी स्ट्रीट फूड, Of course. उसके एड्रेसेस मैं दे Of दूंगा। course. थैंक यू। Ladies and gentlemen, round of applause for the Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji for a very interesting, insightful, heartfelt session. Thank you so much, sir, for coming and for gracing the 11th edition of Times Network's India Economic Conclave. Let's keep that applause going. He's given really great insights on a whole range of topics today to us. Once again, a big thank you to the Honourable Minister for being a part here of the 11th edition of the India Economic Conclave. And with that,